Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. I want to welcome you all in this beautiful divine home. And we have a wonderful, beautiful presence of pure divine Sri Siddheshwar Brahmrishi Gurudev. So sit back, relax, open your heart to receive this cosmic love. This is one of the greatest opportunity that we have someone so pure among us as Paramatma, and our soul is ready to get some guidance. Don't lose this opportunity. Don't go empty-handed today. Open your arms, open your heart, and receive as much as possible. And for this beautiful evening, I would request our chairman for World Spiritual Forum, Mr. Dr. Gupta. He's here with us, his whole family is here, and I would love to hear a few words from him. Okay. Dr. Sushil is our international president and coordinator and youth president. And many others are executives. उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनिए को just to tell you that people wonder, you see the Buddha, and that's God in it, until then you realize that there's God in this movement, in this country. So it's your faith and it's your trust that makes you feel that Guruji, after thousands of years, or hundreds of thousands of years, once there's a God's punch, what they call walking, and they have a general, he didn't take one, he appeared in mind, he didn't speak a word until he was 30. And then when he opened up, he saw Devi Mata, and he put aside all the Vedas and Sanskrit at that age. And by the age of 17, he got all the Ashtasiddhis in Norway, Prabhupada Manjatsa and Gurudev. Ashtasiddhi Manitikidana, Guruji ne Subsiddhi was Sub Nidhi Bhava. And with that, he has those powers. He has been to Mars, London, except Jalisma. Moon, and he has said in his production, जब हम मंगल पे या बुध पे या चांद पे जाते हैं सीढ़ियाँ करने के लिए तो आकाश से भी ऊंचा नजर आता है आपको लोगों ने सुना या नहीं सुना if you pay attention that he tells you everything but it's up to us. He's not a human being, he's God, living God with us. It's all up to us if we believe in it and open our souls and take our truly said and take his blessing. And Guruji said it's like we're sitting in the sun and automatically the heat of the sun goes into your body. You cannot stop. The same way that Guruji is in any room, his aura, his energy, his divine powers, and all that energy also reflects on you and goes in you. And but if you have a positive mind, you get the aura. So refuel your souls and refuel your bodies with positive divine energy. This is the moment. We are so fortunate that he travels 10,000 miles from India to come and bless us. It's our last one over there. He goes from city to city to bless people. Yes, you leave $1 billion in front of me, we won't care. He gives gold and gems for people every day. So, मैंने उनको पूछा गुरुजी एक दिन आश्रम बनाया गुप्ता जी ईंट और पत्थर का आश्रम मुझे नहीं चाहिए मुझे तो आश्रम आपका देता है जो वो चाहिए
gives unconditional love. He does things that you will not believe that God will do. And he hasn't slept for 5 years, I know. Cannot hear you. Lakshman didn't sleep for 15 years, and he did not sleep for 10 more years. And when he closes his eyes, he can see the whole universe, and people are calling for help. Are you okay now? Anyway, can you hear? I can talk without. Not that well. How is it now? I cannot start over. I don't know what I said. So anyway, what I was saying that Guruji is living God with us, and it is up to us to recognize him. In the days of Ramayana and Mahabharata, when Lord Krishna was there, only a handful of people recognized him. Only a handful of people who knew that he is God, and they were close to him. We good? It's the order of something. Okay. So, anyways, this is good that at least it's not happening when Guruji is talking. So, Guruji तो कहीं से भी बोलेंगे कि बात आप तक पहुंच जाएगी. I can tell you that for sure. So anyway, what I'm saying is when Ramchandraji was there, nobody could recognize, not I would say nobody, but only a handful of people knew that he is God. Hanumanji knew, of course, and there were a few others, Cable probably, and few others who knew building. But otherwise, what I'm saying is very few people. We are fortunate that we have mediums here who can tell you who Guruji is. So it's up to you now to either believe or don't believe. And if you believe, then anything is possible. If you have faith, like Guruji said, little faith can take you to heaven. But full faith can bring the heaven right to you here. That's what and he doesn't preach religion, he tells about humanity. Not be a good human being, nothing else. And he believes in every religion. Guruji has read Quran, if you won't believe, but he has. He has read Jewish books, and he has read all the other scriptures of our religion, Hindu religion. And he's the only one in this world right now who's mobile, who recognizes the souls. He can look at any one of us, or any one of you for 10 seconds, and he knows your 7 jannah before and after. And he has the power to ऐसे देख के आपको पता लग जाएगा उनको आप कौन है, कहाँ से आए, but he will not tell you. Because he doesn't want to disturb your life, he wants to improve your life. He is here to make our, what we call voyage from Paramatma, from family, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा को सफल करने के लिए और easy करने के लिए आए हैं गुरुदेव. And that's what he's doing. And now I will ask, I can continue because I love to say things about Gurudev because I can do anything for him, I can tell you that. And I'll give my life for him in a second. Guruji is not only my Guru, he is my God, he's my father, and he's my well-wisher. And he's everything for me and for my family as well. And I'm
fortunate that my two children can see him when he comes unannounced, invisibly to come and visit you. And you will say, oh, he's here, you know. So, which is very nice. We are fortunate to have people like that. And they are pure souls, because you always say that. We are fortunate all other family members are pure souls too. And so is all our friends. Rakesh Vijay's children are the same way. And Sankaji is the same way. A lot of people who are connected here, they know what Guruji is. So all of you who did not connect or are first time here or don't know as much, please pay attention to every word he says. Even that, just open your mind. अपनी आत्मा को खोल के इनको देखो, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी. Trust me. God bless you all. And I'll go to Ritu now to say a couple more words. Because it's important that youngsters can know what she has to say. And she is, believe me, she is a biggest devotee of Guruji. I'm sorry, I was trying to tell all of my uncles here that you all want to hear from Gurudev, but they kind of shoved me on stage. So, Jai Gurudev, my name is Ritu, as I was saying before. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Jai Gurudev! Amazing. As my dad has said, I've done so much meditation, and I've only learned meditation through Gurudev. And it's not because he sat with me and he taught me. It's because when I would sit and meditate, I would feel his energy, because I have that faith. And that's my hope here for all of you today. When you have that faith, you will start to see miracles every day. Everything will feel like love. Everything will feel like a miracle. So for me, I tell people that Gurudev taught me meditation, and they say, how? Was he here? Did you attend a course? No. I sat in my temple and I sat and meditated, and I would tell in my mind to Gurudev to help me and show me the way and guide me, and he always does. I bug Guruji a lot, actually. As my dad says, he comes in and out. I bug him. I talk to Guruji all the time in my head. I don't know. He must get sick of me sometimes, because every day I'll say, Guruji, I have this problem. You have to take care of it. Guruji, I don't know what to do about this. Guruji, I don't know what to do about this. And I'm telling you, he responds. He might not respond in the second that you want it. He might not respond in the same week, in the same month. But when you give any worries you have, any stress you have full faith to give it to Guruji, and then surrender. That's the most important thing, surrender. If you give it to Gurudev, but then you ask a million questions, that's not surrender. So the test for all of you today, I'm sure all of you have something in your mind. Maybe it's health, maybe it's business, maybe it's kids. It could be so many things you have in your mind. Today, I ask you to surrender fully to Guruji. Put it at his feet today, and then don't think about it again. And I can promise you that whatever you have in your mind that you want, any problem you want to get solved, it will get solved today with full surrender. Can we do that? Can we have full surrender? Jai Gurudev! Beautiful. I'll pass it over to Sampathakal. Yes? Perfect. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Jai Gurudev! Thank you, Ritu. Jai Gurudev. Jai Gurudev. I have had the luck of getting my surrender to Pujya Gurudev's lotus feet almost 15 years ago. In that journey, I have learned a lot, and I thought I do a bit of introspect to myself. What was there which kept me going? What was there which gave me the inner strength? What was there which allowed me to keep my head above water? One of the important things I learned is Gurudev's message. Success is failure delayed. Success is failure delayed, and failure is success delayed. Neither success is permanent, nor failure is final. Life is a game, and you play until you win. This one sentence or one quote of Gurudev literally changed my life. We all know, no matter what stage of our life we are, we have days and nights,
joy and sorrow, you think of shadow or sun, there's always an opposite of what we see. So these two things go hand in hand. No matter how rich is your pocket, no matter how little you have in your pocket, we all have miseries and we all have the moments of joy. The question is, why do we go through this joy and sorrow? So if we realize whether it's Dr. Steve Gupta or Donald Trump or a pauper on the street, they all will have the same issues. Right, Gupta sir? Well, that itself shows that there are two parts of everybody. So, in this life, question is, how do we bring this balance in joy and sorrow? As Gurudev says many times, the joy and sorrow are based on our past karmas and based on what we do today in this life. So we have to go through these karmas, there's no two questions about it. And if we have to go through those karmas, then you better learn to live with them. So, how do we learn to live with them? We need to learn not to get overjoyed when the time of the phase of joy is there, or we don't get panicky when we see the suffering. So, in order to get that equanimity in life, that equanimity comes, in my experience, only with the blessings of a Guru. You agree with me? So this is the blessing I found in my life. He taught me how to be calm and peaceful and learn to fight with both hands. If there is joy, just digest it, surrender it to God. If there is sorrow, be prepared to face it, again surrender it to the God. So for me, the God is Guru. Now, why this Guru, not any other Gurus? We all have Gurus in our lives many times. Many of us, I would say that no matter who your Guru is, anybody who has this total surrender and faith in that Guru becomes God. So now, with our Gurudev, as Dr. Gupta mentioned, he is that Guru who has invoked all the Kundalini, or spiritual power of his chakras. He has acquired all the Asht-Siddhis and Navnidhis, which are ultimate when it comes to the spiritual energies. And he rediscovered all the ancient spiritual powers which existed with our sages thousands of years ago. And he is that Guru who is using this energy, this spiritual power, to help us, to give us the inner strength we need to fight with our sorrow and grief. We all have to go through our karmas, but in order to fight those karmas, we need that inner strength, and that strength we get by surrendering ourselves at his lotus feet. I can share many examples of my life where I have seen his true divinity happening in my real life situations. You know, in the life, when you think of it, you have personal, individual, you have family, and then you have your profession, business, whatever. Just about 2 years ago, many life situations I had, but I'm sharing you with the most recent, which is very close to me. Just about 2 years ago, just before COVID, I was at the ashram during Navratra,
I was blessed to get the blessings from Gurudev. He warned me in advance. He told me, Padarji, next 2 years would be the toughest years of your life. So be prepared to face the challenge in all three fronts. Your personal life, your family life, your business life. You will be shattered to pieces. But this is the challenge, you have to face it. You have to go through your karmas. There's no two way about it. But I am with you. I will not let you die. मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा. Those were his words. What else you need in life? I said, Gurudev, I don't care what happens. As long as I have your invisible hand on my head, nothing will happen to me. With that, as soon as I came back, I saw a massive fight in the family, with a divorce in the family. My family life was getting shattered. The most precious jewels I had in my life, which were my grandkids, they were into pieces. Then, in the business front, it was also falling apart. Unfortunately, I had a massive CRA audit, unbelievable. And I knew, as those things were coming, I took it very gladly. Say, well, I know those things have to happen. I am glad I had my Guru, who warned me in advance, so I was fully prepared for it. I knew what the final outcome will be, so I was nothing worried about it. Nothing bothered me. I knew that this is the challenge I have to face, but that invisible hand will support me no matter what happens to me. So with that, one by one, everything fell into pieces just like the pieces of the puzzle, and the whole puzzle turned out to be a beautiful Sampat Podha, the same family what he had 3 years ago. So this is one example. There are many other examples I have in my life. But for that, all you need is your true faith and surrender. So my friends, if you really want to experience the Godhead in your Guru, it comes only with your surrender and faith. So my humble request to you that if you haven't found your Guru in your life, this is an opportunity for you to take those blessings now, surrender at his feet, and I can tell you, your life would be totally floating in water without any issues. Jai Gurudev. Anybody else would like to share? Maybe Rakesh, Vijay? Shekhar, yes. आप आ जाइए पहले, कम नहीं आप बोलिए पहले, बिकॉज मेरा आप सब लोग सारी स्टोरी सुना देंगे, then it will be easy for me, short and sweet. Jai Gurudev. You know, when it comes to Guruji, now I think it's close to 15 years journey with Guruji. When Sampat Bhai Sahib ji introduced me to Guruji, and many of you sitting here, you know that it's not only I'm into the business and all that, but at the same time I'm into a public life, into politics, and very aggressive on things, and I keep on running for the different positions. But one thing which I learned, when it comes to my family, I was speaking to Guruji yesterday also. My entire family day starts with Guruji, and when we go to so we start with Guruji and we finish our day with Guruji. So as soon as we wake up, it's Guruji in our life, and when we go to bed, we remember Guruji, and I don't think there's a single day in my life with whatever the success or failures I had in my life, I ever worried about it. Sometimes my family will also ask me, not my wife, but my brothers and my parents will ask me that many times you go through so much stress in your life, but we never see stress on your face, or we always see you cool and calm.
I lose the election of the member of parliament. Believe me, the results comes at 11:30 in the night, morning 7 o'clock. Again, I'm in my office, and my staff also sometimes thinks, how do you come in the morning 7 o'clock in the office? And I said, that's one thing which I learned from Guruji. How to keep yourself cool and calm. And you learn one thing, you do your part, and then leave everything to Guruji and God. There is always a time in life when you get success. And one of the things which I learned from Guruji yesterday also mentioned in the temple, you know, jo toot gaya wo kankar aur jo na toota wo sankar. That when you fail, you know, he always tells that fail is not a failure. It's your first attempt in the learning. That you learn, and if I look at myself, in the last 15 years, I learned a lot, and people who in this closed room know me that from a very aggressive personality, you know, mature enough, cool and calm, with the blessing of Guruji, you know that how you take your life to spiritual side also, how you balance yourself, you know, how you make your life beautiful and happy. Because end of the day, the life needs to be beautiful and happy, and that's what one thing which we have learned with Guruji. And once you make your life cool and happy, I don't think you look for anything. You look for just peace in your life, and that's what my whole family is very peaceful with the blessing of Guruji. And I think there cannot be a better thing in your life when you are peaceful and you are happy with your family and the entire world. So again, it's all the blessing of Guruji, and Guruji, thanks to you, and you know, from the heart and from my entire family, and whoever met Guruji through us are all blessed, and today are following Guruji, you know, day in and day out. So again, thank you, Guruji. Again, as Sampath Bhai Sabji said, as Dr. Gupta ji said, and as you know, my sister Ritu said, I don't think there can be a better Guru in life. You know, we see God in our Guru, and Guruji, you are God for us. So Jai Gurudev, and Jai Gurudev. I made a mistake. First of all, my apologies for this gentleman here. And we all must thank him for arranging this great divine evening for all of us. And I want to thank you for arranging this wonderful. Look at their mansion, wonderful, and they open their minds and hearts and house to everything. Thank you so much. I'm sorry I showed on that before, but I could not miss it. So before you speak, thank you so much for doing all this for every one of them who is here. And thank you all for coming here and blessing us all. Thank you, Gupta myself. Actually, you don't even have to say, I mean, we feel blessed that we get this opportunity every year when Gurudev comes and we get a chance to host. Honey, you have to come stand with me. I need my wife's support. First of all, thank you, Gurudev. Thank you, thank you. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Jai Gurudev! Actually, you have heard all these international coordinators and chairmen and president and everybody, so they made my job easier, so I don't have to explain it again to you, so you guys all understood and learned about Gurudev. Only thing I'm going to do is I'm going to give you a couple of things that happened in my life that changed me. I met Gurudev in 2013, and thanks to Rakesh Bhai sir. Actually, he met me in one of the Lions Club function, and he came with the flyers that Gurudev is coming tomorrow, and if you would like to meet. I feel myself lucky and fortunate enough. I met a lot of Mahapurush like Gurudev. One of Guruji that you know from Delhi, he happened to live in our house for 10 years before he left his chola. So we were fortunate and lucky enough, and after that we met Gurudev. So in 2013, I met first time Gurudev at Badar Bhai Sahib's house. So we were lucky enough, and we got the opportunity to have one-on-one with Gurudev. So, you know, as usual, Gurudev asked about us, about family and business. So
I said, Gurudev, आपका दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, सब कुछ है, everything is good. But then I realized my daughter was expecting, and that was her second child. By 7 months, you're not going to believe it, her sugar level was so high that doctors put in a give her the medicine, so she had to take the insulin. So it came into my mind, she was not with me that time. So I said, Gurudev, aapka diya sab kuch hai, but this is the problem. So Gurudev gave her a blessing, right sitting from there, she's not even there. So I said, Gurudev, is it okay if I bring her tomorrow and you bless her again? Gurudev smiled and he goes, for sure, why not? So next time we were lucky enough, and thank you, Padar Vaisa, he let us in and she got the blessing. You guys are not going to believe the person who's taking insulin every day, the next day when Gurudev blessed, her sugar level was low. So the whole delivery, her sugar level was low. So that was my first incident. And again I said, I'm not going to take much of her time, but I'm going to be very practical and tell you the things that will happen in your life once you start believing in Gurudev. So Gurudev was here. Right here I can remember in 2017, my son had first baby girl. And you know, we guys are all, we all are selfish a little bit. So I said to Gurudev, Gurudev, bless my son and bless him so that he has a complete family, because I was hoping that she will get a boy so that family is complete. Gurudev said something and I couldn't understand. Gurudev said, "Ek manga tha, do le gaya." So I thought, because I had already asked for him when he started his family to have a baby, so I thought Gurudev saying, "Pehle bhi ek manga tha aur ek aur le gaya." So we said, okay. Now, think about this. 2 months later, our daughter-in-law goes for a first ultrasound. There are twins. अब हमें ये तो पता लग गया कि twins हैं. फिर रोज गुरुदेव से, Gurudev, twins go ahead, will make the complete family. And we were blessed with twin boys. Yes, yeah. And actually, I was in Tirupati, so I got a chance. तो मैंने राजेश भाई साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरे को 1 सेकंड गुरुदेव से मिला दो. मेरे को I have to tell him something because I haven't told it to nobody in the whole family. They knew it, my wife knew it, I knew it, and our daughter knew it. So Gurudev was the first one. तो मैंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव आपके अपना blessing से twins हुए. He was laughing, so he knew right from the beginning. So those are the kind of miracles that happened with me. And I'll tell you another one which will happen with most of us most of the time. I was driving my car, I was in a rush and I jumped the red light. The moment I jumped the red light, I see a police car behind me. You know what? क्या आता आपके दिमाग में? उस टाइम क्या आता? गुरुदेव बचा लेना. I said, Gurudev, बचा लेना. And you're not going to believe it. The police officer came out, happened to be from Brampton, happened to be Indian, and she looked at me, license दिखाओ, मैंने license दिखाया. She goes, your record is very clean. Why did you jump the light? I said, you know what, I was in the middle, so I couldn't decide, should I stop or should I go? So I decided I shall go. She goes, okay, don't do it next time. So these are the little things that will happen in your life. So Gurudev, thank you for everything. Thank you. And you guys should all feel lucky that you are here today to get his blessings. And you know what, I know you don't want to hear me anymore, you want to hear Gurudev. Yes. Look at who's saying, yes, my wife. Jai Gurudev.
लोग 2 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और मन को शांत करेंगे। उद्भव भावनाओं की क्षम्यप्रद विश्व के धर्म और अध्यात्म की विराट विराटिका में कालनेमी की प्रतप चक्र की उदिताओं के पर्वत राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, आदिनाथ से भगवान महावीर तक, सभी परमात्माओं की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, इन सभी भगवंतों की, सभी परमात्माओं की अवतरित भूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि भारतवर्ष से आकर बसे हुए स्टूडेंटों में और बाहर से भी आए हुए सभी मेरे प्रियजनों, मैं आप सबका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से श्री शेखर जी और श्रीमती बीना जी चौहान के गृह स्थान पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस बार मैं टोरंटो में बोलने नहीं आया, मैं अपने सारे बच्चों को जी भर के देखने आया, क्योंकि माता पिता के आंखों से जब उनके बच्चे 2 साल 3 साल दूर रहते हैं तो उनका दिल करता है देखें उसे, मिले उसे। और इस बार सभी हमारे प्रिय बच्चे यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको देखने आया। जितने लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अनुभव बताया, हमारे डॉक्टर श्री esteemed गुप्ता जी, श्री संपत पोदार जी, हमारे सुश्री रीतू गुप्ता, हमारे श्री नवल बजाज जी, श्री चौहान जी, जिन जिन लोगों ने, हमारे डॉक्टर सुशील चौधरी, जिन जिन लोगों ने अपना अनुभव बताया, उनकी भक्ति में ये शक्ति है। कहते हैं भक्ति में वो शक्ति है जो प्रभु को बुला लाती, जो ईश्वर को बुला देती है, परमात्मा को बुला देती है। मेरे बंधुओं, अगर हमारी विश्वास पत्थर के साथ जुड़ जाता है तो पत्थर में भी परमात्मा निकल आता है, पत्थर में भी परमात्मा निकल आता है। हमारा विश्वास गोबर के साथ जुड़ जाता है तो गोबर से गणेश जी निकल आते हैं। हमारी विश्वास मट्टी से जुड़ जाता है तो मट्टी से महादेव निकल आते हैं, उसी मट्टी से महादेव। बात विश्वास की है कि इट इज नॉट क्वेश्चन कि हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, इट इज नॉट क्वेश्चन कि हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, क्वेश्चन इज कि हाउ पावरफुल आवर फेथ इज, हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। एक घटना है, सच्ची घटना, रसिया की, वार्लिन एक जगह है रशिया में, वहां एक व्यक्ति रैकमैन करके था, उसका बेटा सैमुअल नाम था उसका, अपने छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने गया और स्कूल छोड़कर जब वो लौटने लगा तो उसके बेटे ने कहा, डैडी प्लीज कम एंड पिक अप मी आफ्टर द माई स्कूल, माई क्लास। तो उसके पापा ने कहा, मैं yes I will come and pick up you, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। तो बोला, नहीं पापा, आप हमेशा, डैडी आप आते हो, मुझे स्कूल छोड़ देते हो, लेकिन लेने नहीं आते हो, लेने ड्राइवर भेज देते हो, कभी किसी को भेज देते हो।
today you have to come, otherwise I'm not going to come home. I'm not going to come home. You have to come. तो उसके फादर ने कहा yes, I will come. बोला promise. तो उसके फादर ने कहा recommend, okay, I promise I will come and pick up you. वो कह करके लौट कर आया, बच्चा है, स्कूल गया। उसका ऑफिस 40 मिनट्स का रास्ता था, अभी 30 मिनट्स गया था, तब तक बहुत बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। और इतना बड़ा अर्थक्वेक आया कि सारे रोड फट गए, जितने भी वहां की बिल्डिंग थी 90% बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स हो गए, सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए। अब वो भी सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर खड़ा था, इसलिए धरती हिल रही थी। जो अर्थक्वेक बहुत 7.4 और 7.6 का रेशियो से अर्थक्वेक था, तो सारी बिल्डिंगें गिर गई। वो डर गया, उसको याद आया कि मेरे बेटे का क्या होगा, अगर स्कूल भी गिर गया होगा तो तुरंत वहां से रिटर्न हुआ, यू टर्न मारा और स्कूल आया स्कूल तो देखा कि स्कूल पूरे के पूरे नीचे गिर गए और सारे बच्चे उसमें दब गए। सारी जो वहां की जनता थी रो रही थी, किसी का डेड बॉडी मिला, किसी का 90% घायल था वो मिला, सब अंदर दब गए थे। वहां पुलिस ने अनाउंस किया कि नोबडी इज हियर, सब लोग मर चुके हैं, इसके मलबे को हटाया जाएगा और एक एक बॉडी को निकाला जाएगा। वो आया और वो किसी का नहीं सुना, जा करके वहां से पत्थर, कभी स्टोन उठाता, कभी लकड़ी उठाता, कभी वुड्स उठाता, जो भी चाहे उसको हटाता और अपने बेटे को पुकारता, सैमुअल सैमुअल पुकारता, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर दूसरे जगह जाता, उठाता, तीसरे जगह जाता, उठाता, ऐसे करते करते 7:30 हो गए। तो लोगों ने कहा अब यहाँ क्या पत्थर उठाते हो और लकड़ी उठाते हो, इससे कोई मिलेगा? सब बच्चे मर गए हैं, गिर गया, वो कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, उठाता रहा। पुलिस ने भी जब 9 o'clock हो गया, इवनिंग 9 PM, तो पुलिस ने भी कहा कि गो होम, nobody is alive here. Tomorrow JCP will come and will take out all these things. जो भी चीजें उसको हम हटाएंगे, तो जिसकी बॉडी मिलेगी हम उसको सौंप देंगे, दे देंगे। लेकिन वो पुलिस का भी नहीं सुना, वो हटाता रहा, एक एक पत्थर हटाता, कभी लकड़ी हटाता। और वो जो रेकमैन था, वो हमारे जो गुरु हुए देवराहा बाबा जी का शिष्य था। वो इंडिया आता था और देवराहा बाबा जी का दर्शन करता था। वो जब एक घटना, उसको लगभग रात के 12 बजे तक कोई भी पता नहीं चला कि कौन कहाँ है, हटाता रहा। 3 o'clock मॉर्निंग वो कहा, ये देवराहा बाबा, मेरे बेटे को जिंदा लौटा, प्लीज गिव माई सन अलाइव। वो वहीं बैठ गया और लगभग 22 मिनट्स बैठा और बाबा का नाम जपता रहा। उसके बाद उठा, फिर से वही हटाने लगा लकड़ी को। जब 4 AM मॉर्निंग में उसको कोई आवाज आई जो बोल रहा था, डैडी डैडी डैडी। ही फील्स कि इस सैमुअल का साउंड आवाज है। वहां से और पत्थर हटाया तो हाथ दिखा, उसने और वहां से लकड़ी पत्थर हटाए, हाथ पकड़ा, निकाला तो उसका बेटा था सैमुअल, वो जिंदा था। उसको चोट लगे थे, सर पे लगे थे, गर्दन पे लगे, लेकिन वो जिंदा था। उसने अपने बेटे को हग किया, रोने लगा जोर जोर से। तो बेटे ने कहा, पापा डैडी डोंट क्राई, 2 मेरे और फ्रेंड्स अंदर फंसे हैं, वो भी जिंदा है, उनको भी निकालो। तो उसने लकड़ी पत्थर हटाया फिर से और उन दोनों बच्चों को भी निकाला। जब दोनों बच्चे निकले तो इस सैमुअल ने उस दोनों से कहा, मैं बोलता था ना, कहता था ना कि
मेरा पापा आएगा, मेरा डैडी आएगा और हमको लेकर जाएगा। उसने प्रॉमिस किया है कि आई पिक अप, आई टेक यू बैक होम टू होम। उसने प्रॉमिस किया है वो मुझे लेकर जरूर जाएगा। मैं तुम दोनों से कहता था ना, आई ऑलरेडी से यू बोथ ना, तो देखो मेरा पापा आया और हमें लेके जा रहा है। मेरे बंधुओं, जैसे सैमुअल को अपने पापा पर और उसके पापा को देवराहा बाबा पर जितना विश्वास था, अगर हमको भी हमारे गुरु और हमारे परमात्मा पर विश्वास हो जाए तो कैसा भी हो गया है, कैसी भी परिस्थिति है, वो हमें निकाल कर ले ही जाए। और निश्चित निकाल ले। परिस्थिति आई है, दुख है, कष्ट है, हम उसमें समेटे गए हैं, उसमें फंस गए हैं, लेकिन वो हमें निश्चित निकाल लेगा। तो दिस इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, क्वेश्चन इज, मैटर इज कि हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। जितना फेथ तेरा पावरफुल होगा, तुम्हारा भगवान उतने ही तेरे लिए पावरफुल होगा, उतने ही पावरफुल। मेरे बंधुओं, वह अपने जीवन में विश्वास को कभी मत खोना। विश्वास के पहले जितनी डाउट करना है कर लेना। डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट, डाउट एनफ बिफोर मैरिज, वंस मैरिड नेवर डाउट, वंस मैरिड नेवर डाउट। इफ उसके बाद भी अगर आप डाउट कर रहे हैं, then you will be the loser, you will be the loser। हाँ, बिलीव करने के पहले यू हैव चॉइस। तुम जितना डाउट करना है कर लो। Whatever you are think about that person, where you are going to believe, where you are going to believe, you just doubt it. डाउट करो करो, लेकिन once believe, once surrender, never doubt। अगर तुम डाउट करोगे तो जिस पर तुम सरेंडर हुए हो उसकी शक्ति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने सुना होगा राम का नाम। भगवान राम दशरथ के घर में जन्मे हैं, अवतरित हुए हैं। ये कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मणि मणिहारी अद्भुत रूप निहारी। वो प्रकट होते हैं, लेकिन दशरथ को पता नहीं कि ये भगवान है। दशरथ को, उनके पिता को क्या पता कि ये मेरा बेटा है, राजकुमार राम है। और उन्होंने उनको भगवान नहीं समझा तो उनको अकाल मृत्यु आ गई, मरना पड़ा दशरथ को। और राम को लौट कर जाकर के उनको मुक्त करना पड़ा उनकी आत्माओं को। बाप को भी अगर अपने बेटे पर विश्वास नहीं है तो बाप को भी कोई फायदा नहीं हुआ। देख लो, देख लो, उनके पिता दशरथ को बिलीव नहीं कि मेरा ये भगवान है, वो जानते हैं मेरा बेटा है, तो उनको भी अकाल मृत्यु में जाना पड़ा उन्हीं के शोक में। तो मेरे बंधुओं, हम जब किसी भी शक्ति पर अपना विश्वास लगाते हैं तो हमारे लिए भगवान होता है। कहते हैं अपनी अहंकार क्रोध का कद घटा लो, दाखिला हो जाएगा। किसी पर भी अपना आस्था बना लो, वहीं तेरे लिए खुदा बन जाएगा, वहीं तेरे लिए खुदा बन जाएगा। तो जितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, उन सब का फेथ मेरे प्रति इतना ज्यादा है, इतनी भक्ति है कि उनके कार्य को भगवान बन के करा ही लेगा, कारण कि उनकी फेथ है। और इस संसार में जब तक तुम कुछ विसर्जन नहीं करोगे, जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान भी नहीं मिलेगा। लेकिन दो ही तरह से मुक्ति है हमारे जीवन में, दो ही तरह से मुक्ति हो सकती है। या तो खुद बुद्ध, महावीर, हनुमान जैसा तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओ, या तो खुद भगवान बन जाओ, और नहीं तो अपने जीवन में किसी भगवान को ढूंढ लो। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं, कोई रास्ता नहीं। महावीर भगवान हो गए, बुद्ध भगवान हो गए, हनुमान मंकी बिकम मोंक भगवान हो गए,
मुक्त हो गए। और मीरा ने भगवान को ढूंढ लिया, जटायु ने भगवान को ढूंढ लिया, शबरी ने भगवान को ढूंढ लिया, अहिल्या ने भगवान को ढूंढ लिया। तो उन्होंने ढूंढ लिया, उससे मुक्त हो गए, और जो भगवान हो गए उससे मुक्त हो गए। तीसरा कोई रास्ता नहीं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो स्वयं तुम भगवान के नजदीक ला लो, और नहीं तो किसी भगवान को ढूंढ लो, पा लो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मुक्ति के। तो मेरे बंधुओं, एक घटना है कि दो मित्र थे। एक सेठ उस गांव का बहुत पैसा वाला था, धनवान था, और दूसरा नाव चलाता था, नाविक था, गरीब था, लेकिन मित्रता थी दोनों में, अच्छी मित्रता थी। नाविक क्या करता था, सुबह 6 बजे 6 o'clock मॉर्निंग 6 AM अपने नाव को स्टार्ट करता था, और इवनिंग 6 PM नाव को बंद कर देता था। और नदी के पार उतारता था। कोई ब्रिज नहीं था, नाव से ही लोगों को जाना पड़ता था। उसका दिन भर यही काम था। और एक बार जब वो उतारता था तो वह 4 आना लेता था लोगों से। आप लोग जब पुराने लोगों में तो पता होगा 4 आना क्या होता है, 25 पैसा। वो लेता था और पार उतारता था। एक दिन क्या हुआ कि कोई बड़ा व्यक्ति उस गांव में आया, नदी के उस पार, और उसको इस धनी व्यक्ति से कोई कोलैबोरेशन करना था, डील करना था, जिसमें इस धनी व्यक्ति के पास जितना धन था उससे 10 times मोर प्रॉपर्टी उसको धन मिलता एक बिजनेस से, उसको प्रॉफिट मिलता। अब और तब तक क्या हुआ, 6:05 हो गया इवनिंग, इसको पता चला। अब नदी के पार जाना, नदी के पार जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, नाव से ही जाना। तो दौड़े दौड़े नाविक अपना नाव बांध रहा था, कह रहा है मित्र एक काम कर, मुझे उस पार उतार दे। तो नाविक ने कहा नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया, 6 PM हो गया, मैं नाव बांधता हूँ, मैं घर जाऊंगा। बोले कि देख मुझे बहुत जरूरी है। उसने कहा अगर ये डीलिंग नहीं होती है मेरे बिजनेस की तो फिर मैं लॉस कर जाऊंगा, और डीलिंग हो जाती है तो 10 times मोर प्रॉफिट मुझे हो जाएगी, तो प्लीज। तो बोला वो तुम्हारा टेंशन है, वो तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाके मैं अपना टाइम छोड़ के तुम्हें उधर लेकर जाऊं, मैं नहीं उतारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा एक भाई देख, तुम 4 आना लेता है ना, मैं तुमको 4 रुपया देता हूँ, 4 रुपया, 4 रुपीज, तुम मुझे उधर उतार दो। बोला नहीं उतारूंगा। वो जानता था कि ये बड़ा कंजूस है, लेकिन सेठ जो था वो कंजूस बड़ा था, पूरा कंजूस था। मेरे बंधुओं, बहुत बार भगवान उस व्यक्ति को भी धन देते हैं जो नंबर 1 माइजर होता है, उसको भी धन दे देते हैं। एंड व्हाई गॉड इज गिविंग, you are giving. Sometimes if he is the miser, he is not giving, in hope of that God is giving, he is going to give. He is going to give. नहीं तो देखो, we have 3 phases in our life. 3 phases. Learning, earning and returning. First phase learning, second phase earning and third phase returning to society. अगर तुम रिटर्न नहीं किए तो तुम रिटर्न हो जाओ और वहीं पड़ा रह जाएगा। हमने सुना है कि 3 मित्र थे, 3 मित्र में 4 मित्र थे। एक बड़ा कंजूस था, उस मित्र में एक पैसा खर्च नहीं करता था, हमेशा पैसा पास में रखे रहेगा, पास में रखेगा, पॉकेट में रखेगा, घर में रखेगा, उसको पैसे के बिना नींद नहीं आती। उसको बीमारी हुई और डॉक्टर ने कहा कि तुम 1 वीक ही जियोगे, लास्ट स्टेज में कैंसर है, तुम मर जाओगे, कोई उपाय नहीं। तो मरने जा रहा था तो अपने 3 फ्रेंड्स को बुलाया और तीनों को 2-2 करोड़ रुपया दिया, 6 करोड़। तीनों फ्रेंड्स को 2 करोड़, उसको 2 करोड़। बोला कि जब मैं मर जाऊं, मेरी अंतिम जहां संस्कार हो उस जगह पर कोड़कर तुम लोग 6 करोड़ डाल देना, मेरी रूह को भी शांति मिलेगी कि पैसा है। लेकिन पैसा है, मैं पैसे के बिना जी नहीं सकता, इसलिए तुम गाड़ देना। अब उनके दोस्तों ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा, बोला मेरे लास्ट विल है, अंतिम इच्छा है मेरा, कर देना। उसने तीनों को दे दिया। वो 7 के बाद मर गया। मरने के दूसरे दिन 2 मित्र थे, वो गए
और उन्होंने क्या किया, वहां 2-2 करोड़ 4 करोड़ काट दिया, उस जगह को हटा के डाल दिया। तीसरा नहीं गया, वो नहीं गया तो लोग देखा कि आया नहीं है, शाम हो गया नहीं है। तीसरा उनके जाने के बाद आया, खाली हाथ आया और उधर से झोला भर कर आया। तो मित्रों ने कहा, अरे भाई हमने 2-2 करोड़ तो डाल दिए, तुम कहाँ अपना पैसा क्यों नहीं डाला, तेरा पैसा कहाँ है? बोला डाल दिया। बोला तुम तो खाली हाथ गया घर से, हम लोग देखे, और उधर से भर के आया। तो बोला कि जमाना बदल गया है, मैं वो जो तुम लोग 4 करोड़ डाले थे वो भी निकाल लिया और 6 करोड़ का अकाउंट पे एक चेक काट के रख दिया। जमाना व्हाइट मनी का हो गया है, मोदी की सरकार आ गई है, अब सब व्हाइट में चल रहा है, कोई भी ब्लैक में नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने 6 करोड़ का उसके नाम से अकाउंट पे एक चेक काट के डाला कि कोई दूसरा ना निकाल पाए, वही निकाले। और अब 6 करोड़ का जो टैक्स होगा मैं लूंगा, अलग बात है, मैंने दे दिया। तो बाबू अगर तुम इस जीवन में रिटर्न नहीं करते हो तो एक दिन ऐसे ही रिटर्न हो जाओगे और 6 करोड़ का चेक मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं, तुम खाली हाथ जाओगे, कुछ भर के नहीं जाओगे, कारण कि तुम यहां हो वहां नहीं हो। एक बार बादशाह के दरबार में एक फकीर आया तो बादशाह के जो आसपास लोग थे उसको भगा डाला, यहाँ क्या हुआ है, हटो बादशाह की सभा चल रही है। तो उसने वो बैठा और कहा, जानते हो कुछ लोग यहां हैं वहां नहीं है, कुछ लोग वहां हैं यहां नहीं है, कुछ लोग यहां भी नहीं और वहां भी नहीं, और कुछ लोग यहां भी हैं और वहां भी हैं। तो राजा को समझ में नहीं आया, बादशाह को समझ में नहीं आया। उसने कहा, बिरबल ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिरबल ने कहा कि ये फकीरों की भाषा है, फकीर ही जानता है, ये अपने को समझ में नहीं आएगा। और कहते हैं जो न करे लकीर वो करे फकीर, जो न करे लकीर, तेरे हाथ की लकीर जो नहीं करता है फकीर वो भी कर जाता है। तो बिरबल ने पूछा, महाराज आप इसका अर्थ समझाइए। तो उसने कहा कि राजा तुम यहां हो लेकिन वहां नहीं हो, कारण कि तुम ऐसा अच्छा काम ही नहीं कर रहे हो कि तुम वहां हो। क्या कर रहे हो, तुमने तो बस अपने राज्य के धन में, राज्य में इतने तुम विलीन हो गए कि बस तुम सिर्फ भोग में लगे रहे, तुमने तो कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, तो तुम वहां कैसे होगे, सिर्फ यहां। बिरबल ने कहा, दूसरा तुम, मैं यहां नहीं हूं लेकिन वहां हूं, तुम यहां हो वहां नहीं हो, मैं यहां नहीं हूं वहां हूं। फिर बिरबल बोला, तीसरा, तो राजा तुम्हारे आसपास जो ये चमचे हैं ना, ये जो बैठे हैं तुम्हारे साथ, ये ना यहाँ है वहां है, यहाँ भी तुमको खुश करके पैसा ऐंठने के फेरे में हैं और वहां भी यही करेंगे, न यहाँ है न वहां है। तो बिरबल ने कहा, तीसरा, तो राजा तीसरा विक्रमादित्य है, तुम्हारे बगल का ही राजा है, जाके उससे मिल लेना, वो यहाँ भी है और वहां भी है, यहाँ भी है। और तो अपने जीवन में कुछ काम जरूर ऐसा करना कि तुम यहां भी हो और वहां भी हो। तुम कितने भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारा नाम भविष्य, आने वाले भविष्य में नहीं लिया जाएगा जब तक तुम कोई अच्छे काम नहीं करोगे। कितने राजा महाराजा हुए, किसको याद करते हैं लोग, लेकिन तुम बुद्ध को याद करते हो ना, महावीर को याद करते हो ना, राम को याद करते हो ना, कृष्ण को करते हो ना, विक्रमादित्य को करते हो, राजा भोज को करते हो, भरथरी हरि को करते हो, राजा भोज को सब याद करते हैं ना, विक्रमादित्य को याद करते हैं ना। तो मेरे बंधुओं, तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करना, तुम रिटर्निंग भी करना, कारण कि कफर ऑफ द डोनर नेवर बी एम्प्टी, कफर ऑफ द डोनर नेवर बी, दानी का तिजोरी कभी खाली हो ही नहीं सकता, वो भरा रहेगा। जैसे जैसे तुम धर्म की खेती करोगे, मुट्ठी भर डालोगे, बोरे भर आएगा, बोरा डालोगे, लॉरी भर कर आएगा, कारण जो धर्म की खेती है
करना। तो नाविक ने कहा तुम महाकंजूस है, मैं नहीं जाने वाला। वो सेठ को, सेठ ने कहा एक काम कर, कुछ भी कर मुझे तुम वहां उतार दे। बोला नहीं मैं नहीं उतार। तो बोला कि देख भाई मैं तुम्हें 4 रुपया दे रहा हूँ ना, उतारो। बोला 4 रुपया क्यों? तुम्हारा वहां जाकर के मिलियंस में फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, मैं 4 रुपया में क्यों उतारूं? तुम बेकार करो, तेरी जो संपत्ति है उसमें से आधा दे दो। सेठ तक कंप गया, बोले तो बड़ा गड़बड़ है, तो पूरा ले लेगा, नहीं जाऊंगा तो 10 टाइम्स जो मेरा लॉस होगा, और जाऊंगा तो आधा मेरा ले रहा है यहाँ से। तो सेठ ने सोचा कि आधा ही मांग रहा है ना, वहां तो 10 टाइम्स मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं उसमें कमा लूंगा। चल, बोला ठीक है चल। लेकिन वो बोला अभी तुम कागज लाओ, लिखा पढ़ी कर दे, नहीं तो तुम महाकंजूस से बदल जाएगा। अभी तुम हाँ कर देगा और बाद में तुम नट जाएगा, और नट जाएगा तो फिर क्या, तुम तो देगा नहीं। तो सेठ ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है भाई, विश्वास कर मेरे बातों पर। वो बोला देख मैं दुनिया के हर के बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कंजूस की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और बात सही है, कंजूस आदमी दान करके वो दान कर ही नहीं सकता, कर दे तो भूल जाता है, वो देता भी नहीं। हमने सुना है एक आदमी दानचंद था, उसका नाम दानचंद, लेकिन महाकंजूस था, 1 पैसा दान नहीं करता था। उसकी पत्नी भी उससे ऊब गई थी, कुछ भी बोलती वो करता ही नहीं था, देता ही नहीं था, खर्च भी नहीं करता था। तो उसकी पत्नी ने कहा एक काम कर, अभी श्रावण मास आया है, जा थोड़ा गंगा नहा के आ जा। तो उसने कहा गंगा तो 12 किलोमीटर है, उतना जाऊंगा तो पैसा लग जाएगा हमारा। तो पति बोले कैसे भी तुम जा नहा, तो पैदल चला गया तो गंगा जी के घाट पर गया, तो वहां पंडा होते हैं, पैसा मांगते हैं। तो कंजूस को सोचा दानचंद कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो पंडा तो चिपक जाएगा, मुझसे दक्षिणा मांग लेगा। तो क्या किया, मुर्दा घाट चला गया। सोचा वहां तो कोई पंडा होगा नहीं, मुर्दे रहते हैं, डर के कौन आएगा। अब वो गया मुर्दा घाट, और वहां से जाकर डुबकी लगाया गंगा जी में। जैसे डुबकी लगाया, भगवान को शरारत सूझी। भगवान सोचे तो महाकंजूस है, इसको कुछ न कुछ करना होगा। तो भगवान ने पंडा का रूप ले लिया, और पंडा का रूप लेकर के उतर गए वो। अब तो जब नीचे से डुबकी लगे, ऊपर से देखा था पंडा, बोला जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब तो दानचंद इसका तो होश उड़ गया, तुम कहां से पहुंच गए यहाँ, तुम तो थे नहीं। बोला तुमको देखा तो मैं आ गया, और मैं इसी घाट पर रहता हूँ। तुम्हारे जैसे जजमान आते हैं, और एक आते हैं और 1 साल के खर्च देकर चले जाते हैं। ये तो और हिल गया, बोला कि बात 1 दिन देने का मैं तैयार नहीं हूँ, 1 साल का मांग रहा है। तो बोला देख तुम मुझसे कोई आशा मत रख, मैं कोई 1 साल का देने वाला नहीं। तो उस पंडा ने कहा जो भगवान थे चिपक गए उसको, बोले नहीं बिना देने तुम जा नहीं सकते, मुझे देना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मैं तुमको 1 आना दूंगा। 1 आना समझते हो, पहले होता था 6 पैसा का 1 आना, मैं 1 आना दूंगा। तो पंडा ने कहा ठीक है, तुम जो दे रहे हैं तो, लेकिन वो भी अभी नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, मैं घर जाकर दूंगा। तो पंडा ने कहा ठीक है, तुम घर जाकर लेके आके दे देना। लेकिन भगवान जानते थे घर जाके देगा नहीं। तो जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके नेक्स्ट डे सुबह भगवान पहुंच गए, वो पंडा पहुंच गया, बोला जजमान की जय हो। तो उसकी पत्नी ने आवाज सुनी, आई और पूछी आप कौन हो। तो बोले मैं पंडा हूँ, गंगा किनारे आपके पति 1 आना दान किया है, मैं वो दान लेने आया। तो उसकी पत्नी जाकर के दानचंद से बोली कि एक व्यक्ति आया है पंडा, आपने सही दान किया है 1 आना, आप उसको दान दे दिए, वो दान लेने आया है। तो पति बोला जाके बोल दो मैं बीमार हूँ, 1 सप्ताह के बाद आना। तो पत्नी जाकर के बोली कि आप 1 सप्ताह के बाद आना, मेरे पति दानचंद जी बीमार है। तो कहा अरे अरे मेरा जजमान बीमार है, मैं क्यों जाऊंगा, तब तो जब तक वो ठीक नहीं होगा मैं यही रहूंगा। वो अगर जजमान है, वो बीमार है, तो मैं कैसे जाऊँ, उसको मैं ठीक करके जाऊंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, दुआ करूंगा उसके लिए, अब मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, मेरे रहने की व्यवस्था कर दो। तो उसकी पत्नी पड़ गई फेरे में, सोची कि डूबे गए चौबे गए, छब्बे बनने डूबे बनकर आ गए, उल्टा और खर्च लग जाएगा। तो उसने पत्नी जाके बोली वो तो कह रहा है मेरा खाने की व्यवस्था कर दो, रहने की व्यवस्था कर दो। अब वो तो तुम जब तक तुम बीमार रहोगे तब तक वो यही रहेगा, यही खाएगा। तो बोले एक काम करो, जाके बोल दो कि बीमार थे अब मर गए। देखो कितना कंजूस था वो, दान देने के डर से मृत्यु को भी बोल दिया, जाकर बोल दो मर गए।
पत्नी जाके बोली रोते हुए कि दानचंद जी अब नहीं रहे, सिधार गए। तो उसने बोला कि अब तो सिधार गए, अब आपको कौन दक्षिणा देगा, आप जाओ। बोले ठीक है, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, लेकिन मेरे यजमान की अंतिम संस्कार करके जाऊंगा। मैं ऐसे जाने वाला नहीं, मैं उनकी अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। तो अब तो फंस गया दानचंद, तो उसको उठा कर वो बाहर लाए कि मर गया। तो क्या किया जाता, सांस रोक लिया। तो जब भी लोग नजदीक जाता तो सांस रोक लेता, लोग सोचते कि ये गुजर गया। अब जब उसको जो बनाते हैं ना लेके जाने के लिए लकड़ी का, हाँ उसको बनाते हैं बांस का काट करके लकड़ी का, तो बनाने लगे उसको उठा के ले जाने के लिए। तो उसकी पत्नी बोली मेरे पति मरे नहीं है, सांस रोके, छोड़ दो। तो लोग क्या सोचा कि ये जो पति मर गया इसलिए बावली हो गई है, दुखी हो गई है, इसलिए सोच रही है। बोले जाने दो, हिम्मत रखो, तुम्हारा पति जाने वाला चला गया, अब क्या करोगे, थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा अब तो जाने वाला चला गया, कौन लौट कर आता है दुनिया से जो चला गया। बोले नहीं वो मरे नहीं है। लेकिन लोग सुन ही नहीं रहा था उसका, वो सोचे कि ये पति के मरने के शोक में पागल जैसी हो गई है। अब वो चिल्लाती रही, लोग उसको दानचंद को उठा के लेके गए उधर। वो सजाया गया था सारा, उसको दफनाने के लिए लकड़ी रखा गया था, उस पर सुला दिया गया। दानचंद सांस रोक के बैठा था। अब भगवान ने कहा तो जल जाएगा, जिंदा ही जल जाएगा, ऐसा मूर्ख है। तो आग लगाने, जैसे लगाने वाले लोग आग लगाने आ रहे, तो भगवान ने कान में कहा, तो गंगा ने, हे दानचंद तुम मर जाएगा, तुम जल जाएगा, जिंदा उठ के बैठ, तुम सांस रोक के बैठा है। तो सब लोग सोचे मर गया। तो उसने कहा एक वरदान दीजिए तो मैं बैठूंगा। लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें बचना है, तुम किसी को वरदान मांग रहे हो, तो ना दीजिए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मांग लो। तो बोला कि एक काम कीजिए, जो मैं एक आना दान किया था उसे छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा जा मैं हार गया, तेरी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते अपने जीवन में। मैं कहता हूँ कुछ जरूर करो जीवन में, विसर्जन होना चाहिए हमारे जीवन में। कारण कि दानम दुर्गति नाशनम, दानम दुर्गति, हमारे जीवन के आने वाले दुर्गति का दान नाश करता है। अगर तुम दान करते हो तो तेरी जो आने वाली कोई भी दुर्गति है उसका नाश होता है। मेरे बंधुओं, ये सच्ची घटना है। जबलपुर का एक व्यक्ति नौकरी करता था, वो नौकरी छूट गई, उसकी चली गई, नौकरी नहीं मिली, वो व्यापार किया, 3 बार व्यापार किया, वो भी छूट गया। ट्रेन से आ रहा था तो इटारसी एक स्टेशन है, वहां उतरा, उसका बैग किसी ने उठा लिया, खत्म, कुछ भी नहीं था उसके पास। अब वो सोचा कि मेरा जीवन ही बेकार है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो आत्महत्या करने के पहले सोचा कि एक बार मैं देवराहा बाबा जी से आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो देवराहा बाबा जी क्या आया, मचान पर बैठे थे, मैं बगल में मैं भी बैठा था, छोटा था उस समय, मैं 9 साल का था, गूंगा था, मेरी आवाज़ नहीं थी, मैं बोलता नहीं था, तो बैठा था। तो लेकिन मैं सुनता था, सुनाई पड़ता था, बोल नहीं पाता। तो वो भास्करानंद सागर जी के पास गया, जो बाबा जी के बड़े सेवक थे, बड़े संत थे वहाँ। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। भास्करानंद जी बोले क्या कर रहे हो तुम, बचपना, मर जाने से क्या होगा, शरीर बदल लोगे, कल आत्मा तेरी किसी कीड़े मकोड़े में चली जाएगी, फिर कर्म काटेगी, रुक तुम बाबा के पास चलो। तो उसको बाबा के पास लेकर गए। बाबा, बहुत भीड़ था वहाँ, उनको समय नहीं। तो भास्करानंद जी जाके बाबा के कान में कहा कि ऐसे ऐसे आदमी मरने आया है, आपकी अंतिम दर्शन करने आया है। तो बाबा ने कहा दानम दुर्गति नाशनम, दानम दुर्गति नाशनम, 2 बार बाबा ने कहा। भास्करानंद जी समझ गए, उसको लेकर आए, बोले तेरे पास कुछ पैसा है दान करने का? बोला है 500 है। एक काम कर, उसमें से तुम 100 रुपये दान कर सकते हो। तो बोला 100 रुपये का, मैं तो 500 दान कर दूंगा, लेकिन मुझे तो मरना है, और मरने के बाद पैसा किस काम का, पड़ा रह जाएगा। तो उसने कहा कि मैं पूरा दान कर दूंगा, और वो जाके 500 का 500 दान कर दी। दान करके लौट के आया भास्करानंद जी के पास आशीर्वाद देने। जब वो लौट के आया तो वहाँ एक जबलपुर का सबसे बड़ा सेठ बैठा था, जिसके कपड़े के बहुत शोरूम थे।
तो भक्तराम स्वामी जी से कह रहा था कि मेरे बहुत शोरूम है, 2 शोरूम मेरे बंद पड़े हैं, कोई आदमी नहीं है चलाने वाला मेरे पास। तो भक्तराम जी ने कहा कि इसको ले लो, इसको सब अनुभव है, एक तुम्हारा यहाँ काम कर सकता है। तो उसने क्या किया, इसको सैलरी पर बात कर लिया और लेकर के गए, एक दुकान दिया। उसने 2 महीना में उस दुकान की प्रॉफिट 7 टाइम्स बढ़ा दिया, इतना मेहनत किया। तो उस आदमी को बहुत खुशी हुई, उसने इसको 25% शेयर में रख दिया। उस दुकान को और बढ़ाया तब उसने 50% कर दिया। उसके बाद उसने दूसरे दुकान को भी टेक ओवर किया। ऐसे करके उसको इतना आगे बढ़ा कि 50% उसको बहुत पैसे आ गए, और उस पैसे से वो ज्वेलरी किया। आज उस आदमी के पास 22 ज्वेलरी शोरूम है, 22 लखनऊ में, दिल्ली में, जबलपुर में 22 ज्वेलरी के शोरूम है, और 87 कपड़े के शोरूम, 87 कपड़े के शोरूम है और 22 ज्वेलरी के शोरूम है। तो दानम दुर्गति नाशनम, हमारे जीवन में विसर्जन जरूर होना चाहिए। हाँ, तब नाविक का कि जब तक तुम लिखेगा नहीं मैं पार नहीं कराऊं। फिर सेठ ने कहा, देख भाई अब लिखा पढ़ी बहुत टाइम लगेगा, रात हो जाएगा, तुम करा देंगे, पर विश्वास है। तो बोला ठीक है, अभी तेरे पास कितना रुपया है? तो बोला मेरे पास 4 रुपया है। तो बोला दे, वो तो कम से कम दे दे, बाद में तुम देगा कि नहीं देगा। तो 4 रुपया ले लिया और लेकर के नाविक पार उतार दिया। उस पार जब पार उतर गया तो सेठ ने कहा, देख देख भाई मेरे पास 4 रुपया है, तभी तो तुमने पार उतारा, नहीं तो तुम पार तो नहीं उतारते। तो उस नाविक ने कहा, सेठ अभी भी तुम गलत सोच रहे हो, भूल रहे हो। तुम 4 रुपया पकड़ के रखे इसलिए पार नहीं उतरे हो, 4 रुपया का मोह छोड़ दिया इसलिए पार उतर गए। तुम उस 4 रुपया को पकड़ के रखे इसलिए पार नहीं उतरे हो, उस 4 रुपया का मोह छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया, इसलिए पार उतरे हो। तो अपने जीवन में बंधुओं जरूर अच्छे कार्य करना। श्रम दान हुआ, समय का दान हुआ, धन का दान हुआ, विद्या का दान हुआ, सेवा का दान हुआ, किसी रूप में जरूर करना। तुम दामचंद जैसा मत बन जाना, जरूर करना। अपने जीवन में अच्छी चीजें जरूर करना और जीवन को सुंदर बनाना, यहाँ भी होना और वहाँ भी होना। चलो सबका जीवन सुंदर हो, पवित्र हो। आपके जीवन में भी आप अपनी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या को विसर्जन करो। हमारे यहाँ ईर्ष्या पाल लेते हैं, हमारे यहाँ ईर्ष्या भी है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग सिनेमा जो हॉलीवुड बॉलीवुड वाले हैं उनको लोग अपना आदर्श मानते हैं। मैं कहता हूँ तो नाटक कर रहा है। जिस दिन से लोग इस सिनेमा वाले को, अभिनेताओं को अपना आदर्श मानना छोड़ करके बिजनेसमैन लोगों को अपना आदर्श मानने लगे, इस संसार की गरीबी खत्म। इस संसार की गरीबी, उस बिजनेसमैन को अपना आदर्श माने, वो कैसे आगे बढ़ा है, उसने कैसे डेवलप किया है खुद, उससे तुम्हें भी बुद्धि आएगी, तेरे भी अंदर ज्ञान आएगा, तेरे भी ज्ञान आएगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। नहीं तो उस सिनेमा वाले को आदर्श मान, वो तो नाटक कर रहा है, वो तो अभिनय कर रहा है, उसको क्या आदर्श मानोगे? वो तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो जीवन में और ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इन सब को त्याग और हमारी इंडिया में ईर्ष्या होता है, उनके पास ईर्ष्या होता है। हमने सुना है कि 3 आदमी भगवान के पास चले गए, एक तंजानिया का था, एक युगांडा का था और एक इंडियन था। तो तंजानिया युगांडा वाला काला था, ब्लैक। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों मांगो, क्या चाहते हो? तुम लोगों ने बहुत मेरी सेवा किया, तपस्या की। तो तंजानिया वाला कहा, भगवान मैं काला, आजकल गोरे का बहुत फैशन है, चार्म लोग वही लोग हीरो बनते हैं, तो मुझे भी गोरा बना। भगवान ने कहा हो वस्तु। तो युगांडा वाले ने कहा, भगवान मुझे भी करना है, मैं भी काला हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी गोरा बना। भगवान ने कहा वस्तु जा गोरा हो। अब इंडिया वाले से पूछे,
तुम्हें क्या चाहिए? तो इंडिया वाला तो ना काला था ना गोरा था, बीच में था। तो सोचा मैं गोरा क्यों बनने जाऊँ, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं काला भी क्यों बनने जाऊँ, मैं तो अच्छा हूँ। तो उसने कहा भगवान इन दोनों को काला बना दिया। फिर से वही की वही हालत हो गई संसार की। मेरे बंधुओं, वही की वही हालत हो गई संसार की। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये सब छोड़ना, हल्के हो जाना और जीवन को इतना सुंदर ढंग से जीना। Our life serve two ways. Will either serve as a warning or as an example for next generation. As an example for next generation. तो अपने जीवन को ऐसा जीना कि ये जीवन एग्जाम्पल बन जाए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सुंदर जीना, जीवन को सुंदर बनाना। कारण कि तुम अगर मेरे प्रिय हो, मेरे अपने हो, तो तुमसे मेरी पहचान हो जाएगी। अगर तुम गलत किए तो लोग कहेंगे कि तुम जिस गुरु को मानते हो और तुम ही इतना गलत हो तो तेरा गुरु कैसा होगा, वो कैसा होगा। और अगर मैं गलत कर दिया कोई काम तो लोग कहेंगे तेरा गुरु ही ऐसा है तो तुम कैसा होगा। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन को ऐसा सुंदर ढंग से जीना कि आने वाले जनरेशन के लिए एग्जाम्पल बने। और मुझे भी वैसे ही जीना है कि आने वाले जनरेशन के लिए एग्जाम्पल। कारण कि आप सबसे मेरी पहचान है और मुझसे आप सबकी पहचान है। तो जो भी मेरे प्रियजन हैं और इतने सुंदर भाव मेरे लिए सबों को, जो आया हमारे डॉक्टर esteemed गुप्ता जी, उदार जी, बजाज जी, डॉक्टर सुशील चौधरी, चौहान जी, राकेश विजय, ये जो भी हमारे अपने बच्चे हैं, जिसको इतना ऋतु गुप्ता इतनी सुंदर भाव आए मेरे प्रति, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। उनका ट्रस्ट है, उनका विश्वास है और उनकी विश्वास मेरे अंदर परमात्मा देख लेती है, उनकी विश्वास। कारण कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी हर बातें लाखों की लगती है। हम किसी को भी प्रेम करें, हर बातें लाखों। आज माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा काला है, लंगड़ा है, लूला है, कैसे भी है, लेकिन माँ उसके साथ खेलती रहती है, खुश होती है, उसको हंसाती है, हंसती है और खुद ही बोलती है, खुद ही सुनती है। और माँ को बहुत अच्छा लगता है, रात भर वो सुनती रहेगी उसको। जो उससे प्रेम नहीं करता, अगर बगल में सोया हो और बच्चा आए बाएं टाएं कर, मेरा दिमाग खराब हो गया, रात भर सोने नहीं दिया। लेकिन माँ को वो न बोले तो परेशानी हो जाती, कहीं डॉक्टर पास ले चलो, मेरा बेटा गुमसुम है। अतः माँ उसको इतना प्रेम करती है कि उस लड़के का आए बाएं टाएं भी लाखों की लगता है उसको। उस लड़के की हर चीजें उसके लिए लाखों की होती है। तो जानते हो, ये सब बच्चे मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरी गलतियां भी इन्हें याद आने लगती है। मेरी गलतियां भी इन सबको मेरी याद आने लगती है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी गलतियां भी हमें याद आने लगती है, और जिसको प्रेम नहीं करते हैं उसकी अदाएं भी हमें गलतियां लगने लगती है। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। सबका जीवन सुंदर हो। आप अपने जीवन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या इस सबको हटाना और परमात्मा आपको संपन्नता दे, श्री और समृद्धि की सानिध्य दे, आपको स्वस्थ शरीर दे, स्वच्छ विचार दे। जो भी आपके जीवन की जरूरत है परमात्मा उससे पूरा करे। कहते हैं कि गॉड फुलफिल आवर नीड्स, नॉट आवर ग्रीड्स। गॉड फुलफिल आवर नीड्स, नॉट आवर ग्रीड्स। तो जो भी नीड्स है परमात्मा फुलफिल करे। आपकी जो भी आशा है, जो भी प्रार्थना है भगवान से, भगवान पूरा करे। एक बार अपने हाथ को अपने हृदय पर रख लें
और बोले ओम ह्रीं हं हुं जुं श गं गणपते नमः गं गणपते नमः ओम श्वः भुव भू लं ह्रीं हुं श। अब आपको जो भी प्रार्थना करना है, जो भी भगवान से आपको मांगना है, आप जो भी चाहते हैं ईश्वर से, वट एवर यू लाइक टू प्रे, वट एवर यू लाइक टू सीक फ्रॉम गॉड, जो भी आपके मन में हो, कहते हैं कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। दूसरे से कहोगे तो खिलियां उड़ाएगा, मांगोगे तो इनकार कर देगा, उसी से मांग लेना, वो खुशी से दे जाएगा और कहेगा भी नहीं किसी से। ममं प्रार्थनायां दिव्यं स्वः इदं सिद्धिः भवति। दिव्याणि कृतानि यं हं जुं शः भुव अं अः नमो अरिहन्तानं। श्रीं शं शः युं श्रीं शं शः नमो सिद्धानं। श्वः दिव्यं ओम हं जुं शः ओ भुव भू ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मा अमृता। शः हुं जुं यं स्वरो भुव भू ओम महामृत्युंजयः दिव्यः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अगर आपको अपने व्यापार में, अपने किसी कार्य में कोई कमी है, व्यापार ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, स्लो चल रहा है, या आप जो नौकरी कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं है और बढ़ना चाहते हैं, या आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और तो मन में स्मरण करते हैं। किसी चीज़ की भी सफलता के लिए आप सफल होना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको याद कर लें। श्रीं श्रीं शुं लक्ष्मी नारायण अं अः आदिलक्ष्मी यं हुं विं विद्यालक्ष्मी गं गं गजालक्ष्मी ह्रीं हं शः धनालक्ष्मी शं शः श्वः शर्व लुं सौभाग्यलक्ष्मी यं हुं ह्रीं यं शः संतानालक्ष्मी यं अं अः ऐश्वर्यालक्ष्मी मं हुं रुं श्रीं महालक्ष्मी। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। बोलो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अब कोई भी स्वास्थ्य में परेशानी हो, if have any health problem, health issue, remember that. If you do not have, you are healthy, then आप प्रे करें कि I will be healthy. मैं हेल्दी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। हं हुं हन हनुमते नमः। ओम
घृणी आदित्य दिव्य मित्राय खगाय सूर्याय नमः श्वः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीच्य दिव्यः स्वः आरोग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ओम स्वः नमो भगवते वासुदेवाय दिव्यम ओम नमः शिवाय श्वः मम मंत्र ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः दिव्यः श्वः मम प्रार्थनायां सिद्धः सरस्वतीश्च कंठे वसिष्ठ भुजे काली गृहे लक्ष्मीश्च मुखम गणेशं हृदय मुरारी जय देवी शरणारविंदम हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार हो सफल हो सार्थक हो मुझे प्रार्थना करने नहीं आता मेरी प्रार्थना की लाज रखना मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है उसे पूर्ण करना सफल करना हे भगवान सफल करना स्वस्थ शरीर हो स्वच्छ विचार हो जीवन सार्थक हो विजय की प्राप्ति हो हे प्रभु परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल हो सार्थक हो। मैं एक आत्मा हूँ यह शरीर धारण किए हुए हूँ I am a happy soul. I am a happy soul. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am a pure soul. I am a pure soul. I am a healthy soul. I am a healthy soul. I am a happy soul. I am a divine soul. I am an angel. I am an angel. I am a Messiah. I am a Messiah. I am a powerful soul. Oh God, lead me higher. Lead me higher. Lead me deeper. Lead me deeper. Lead me beyond. Lead me beyond. Lead me to you. Lead me to you. मेरी प्रार्थना सफल हो। 3 बार अपने हाथ को ऐसे अपने हृदय पर फेरो और इंडेक्स फिंगर हो इस उंगली और ललाट पर उंगली। अब चलते चलते एक बार जोर से हंस दो। मैं हमेशा एक रैम सुनाता हूँ, एलकेजी यूकेजी का रैम्स है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। बोलो सब, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। रो के क्यों बोल रहे हो, हंसो जोर से। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। खुश होने का समय कब है? अभी। होली, दिवाली, 1 जनवरी और बर्थडे नहीं, अभी। पता नहीं होली की कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, किसको पता। इसलिए द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। नॉट स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, हवाई या चौहान जी का घर, ये ना करना। तो द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। और हंसे बजोर से
वे टू बी हैप्पी इज टू। अब एक दूसरे को देखकर हंसो। और जो पति पत्नी आए हैं वो एक दूसरे को देखकर हंस लेना जरूर। पता नहीं घर में मौका मिले कि नहीं मिले। The way to be happy is to make and have a little heaven right here. Have a little heaven right here. इस धरती को ही स्वर्ग बना लो। कहते हैं हंसते हुए लोग लगता है स्वर्ग से आए हुए हैं, और हंसाते हुए लोग लगता है इस धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। और जानते हो, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। मेरा भी एक स्वार्थ है। जब भी किसी के भी बच्चे अगर माता पिता को हंसते हुए मिले तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। माता पिता की उम्र बढ़ जाती है। मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, दे आर हैप्पी। बाप पिता उससे 5 साल ज़्यादा जी लेंगे उस संतुष्टि से। तो मेरे बच्चों, मेरा भी परिवार, मेरे बच्चे तुम ही लोग तो हो, और तो कोई है नहीं। तो जब तुम लोग मुझे हंसते हुए दिखते हो तो मेरी भी उम्र बढ़ जाती है। और यही कारण है कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, 80 years old, लेकिन आज तक बूढ़ा नहीं हुआ। कारण कि तुम हंसते हुए मिलते गए, मेरी उम्र बढ़ाते गए। बहुत बहुत साधुवाद सबको। फिर से हम श्री शेखर जी चौहान और श्रीमती बीना चौहान के गृह स्थान पर पुत्र रोहित चौहान, पुत्री शालिनी और जतिन, सभी लोगों को घर के जो भी आज इस कार्यक्रम को हम धर्म सभा को जो किया है उसके लिए हम एक बार जोरदार तालियां। और चौहान जी और बीना आप लोगों की अच्छी मित्र है, इसलिए कि मित्र हम सूर्य को कहते हैं। सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द मित्र है, इसलिए सूर्य नमस्कार कहते हो दिनकराय नमः, भास्कराय नमः, खगाय नमः, हिरण्यकश्याय नमः, आदित्याय नमः के बोलते हो मित्राय नमः। मित्र हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ाए, अच्छा करे, हमें एनर्जी दे, लव और नन फॉर, वो हमें बिना किसी लोग का हमारे लिए अच्छा करे। तो शेखर जी और बीना आपके अच्छे मित्र हैं। इन्होंने वाइन का पार्टी देकर आप सबको नहीं बुलाया, डिवाइन का पार्टी देकर। अगर ये चाहते तो वाइन का भी पार्टी देकर बुला सकते थे, और उसमें इससे ज्यादा लोग आते। तो मेरे बंधुओं, लेकिन अगर आप आकर शराब पीते, आप आकर नॉनवेज खाते, आप आकर कुछ उल्टे पुल्टे चीज देखते, तो उससे आपकी सोल नीचे गिरती कि ऊपर उठती? नीचे गिरती, पुल डाउन होता है। और जब आप डिवाइन के अच्छी जगह अच्छी चीजों से जुड़ने जाते हो, जब अच्छी बातें सुनते हो, तो आपकी सोल अपलिफ्ट होती है, ऊपर उठती है कि नीचे गिरती है? ऊपर उठती है। तो आप अच्छे मित्र हो। शेखर जी और बीना ने आपको आपके सोल को पावरफुल बनाने के लिए, सोल को लिफ्ट करने के लिए डिवाइन का पार्टी दिया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो नशा डिवाइन में हो कहाँ है वाइन? जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है? अरे वाइन की नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाए, लेकिन डिवाइन की नशा मीरा को चढ़ गई, हनुमान को चढ़ गई, सबरी को चढ़ गई, जटायु को चढ़ गई, अहिल्या को चढ़ गई, चढ़ गई कभी उतरी ही नहीं। चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर कभी उतरी ही नहीं। तो मेरे बंधुओं, फिर से हम शेखर जी और बीना और उनके पूरे परिवार को साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद के लिए भी ताली बजाओ कि तुम भी अच्छे काम करने के लिए आए हो। थैंक यू टू ऑल एंड हैप्पी नाइट टू ऑल। Thank you very much, Puja Gurudev. Now, couple of more things we do before we. Please, everybody have a seat. Please don't move.
2 years, World Spiritual Forum Canada has undertaken many social projects. And one of them is to feed poor and feed helpless. So many volunteers have done very active job. So we will like to recognize them right now. So this way, this is an inspiration for all of us others to do some much better social work than what we have been doing it in the past. Second thing, I request everybody, Gurudev said just one thing, that God fulfills the needs, not greed. Everybody agrees? Yes. So my humble request is, there are devotees here sitting who already got the blessings on Sunday at the temple. I will request all of those people to please sit and give a chance to others who did not get the blessings on Sunday. So I would request everybody to please stay at your place unless you got unless you did not get the blessing on Sunday. First priority to those people, those devotees who are new here and did not get the blessing on Sunday. My humble request, please keep the discipline, so this way all the others who did not get the blessings get a chance to get the blessings. I hope you cooperate and you will show your sense of discipline and your surrender to Puja Gurudev. So now we will invite all those volunteers to come forward and get the appreciation certificate from World Spiritual Forum Canada.